Hi students, I'm Andrew sir. Welcome to my channel Easy IT, IT made simple. In this video, we'll be talking about DBMS, Database Management System. This is made for the students of class 10th who are going to appear for their board exam and have opted for IT 402 subject in the 10th class board exam. This video will brush up your knowledge about the theory related to database. So let's move on. This whole video is based on the introduction to database, means the theory part. When talking about database, the first thing which comes in mind, that is data and information. Now, what is data and what is information? Talking about data, data are raw, unprocessed facts and figures with no meaning. Means ऐसी चीजें या ऐसी हम बोल सकते हैं फैक्ट्स जो हम कलेक्ट तो करते हैं लेकिन उनका कोई भी महत्व या मीनिंग नहीं होता है. जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें 25, 30, 45, आयुष, जनवरी, 85%, phone numbers, roll numbers. All these things are data, but they don't have any meaning. When this data is processed, it converts into a information. Now, what is information? When the raw facts and figures are processed with a meaning and usefulness, then it is known as information. Now, talking about an example from the above one, like Ayush scored 85% in January. The average class scored 87%. There are top 3 students of the class. When this data is processed and converted into information, then it comes handy to the user. For that, this data is processed into an information, means the data is kept or put into a structural form so that it becomes an information. But to convert this data into a structural form, we need something. That something is known as your database. And to run your database or to move in your database or to manipulate your database, you require a software. That software is named DBMS. Talking about database, database are nothing but a collection of logically related data which are stored in an organized manner. मतलब आप जब डाटा को इकट्ठा करते हो और उससे सही तरीके से एक टेबल में प्लेस करके एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट देते हो, तब उसे डाटाबेस बोला जाता है. द इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन अ डाटाबेस, also modified or deleted, or you can display it according to the requirements. Or in simple language, we can say that a database is an organized collection of data that is stored and managed electronically. Means you don't require a hard copy of everything, whether the page is lost, whether the ink is spread across the page. Nothing happens like that. You can reformat it, remodify it, you can delete data electronically. It allows the users to easily store, retrieve and modify information, like when you store information in your library records. आपके लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स में जब आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं तो एक डाटाबेस में स्टोर होता है. जब भी आपको किसी बुक की जानकारी चाहिए रहती है, आपसे बुक नंबर डालते हैं और वो आपको बता देता है किस शेल्फ में वो बुक है, किस पब्लिशर के नाम से वो बुक है, किस ईयर में वो पब्लिश हुई, उसकी अमाउंट क्या है. ऑल दीज आर ऑल स्टोर्ड इन योर डाटाबेस. लेकिन डाटाबेस को मैनेज करना, उसको बनाना किसके हाथ में होता है? आपके डीबीएमएस के हाथ में. दैट इज नोन एज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है which can create, update and retrieve data from a database. तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि आपके डाटाबेस में से आपके अकॉर्डिंग डाटा को क्रिएट भी कर सके, अपडेट भी कर सके और वापस आपको लाके दे भी सके, दैट सॉफ्टवेयर इज नोन एज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ये क्या करता है? ये आपके डाटा को किस तरीके से स्ट्रक्चर में पुट करना है, उसको किस तरीके से प्लान करना है, कैसे मेंटेन करना है, ये सारा काम कौन करता है? आपका DBMS. Now talking about for example of DBMS, MS Access, LibreOffice Base, Oracle, MySQL. From this, all the students may be learning about LibreOffice Base if they are related to CBSE class 10. Now moving forward, we spoke about data, information,
database management system, what is database, but why is it important? What are the advantages of it? So talking about the advantages of database management system, the first advantage is organized storage. As I repeatedly said, जैसे कि मैंने बार बार बोला कि एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आप अपने डाटा को स्टोर कर सकते हो ताकि उसका रिट्रीवल, उसको वापस से खोजना आपके लिए बहुत आसान हो जाए और एक्यूरेट एंड फास्ट हो जाए। नेक्स्ट कम्स डाटा एनालिसिस। एक डाटाबेस आपके डाटा को एनालाइज करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है। जैसे कि हमने इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, जब डाटा ऑर्गेनाइज मैनर में होगा, जब वो प्रोसेस्ड हो जाएगा, तब वो इंफॉर्मेशन हो जाएगा, तब हमारे लिए वो मीनिंगफुल हो जाएगा। उसी तरीके से डाटा एनालिसिस का काम भी बहुत आसान हो जाता है। देन कम्स डाटा शेयरिंग। मान लो कि आपकी अलग अलग फ्रेंचाइजी अलग अलग जगह पे स्थित है, लेकिन आपको सारा डाटा एक ही जगह पे चाहिए, तब भी आपका डीबीएमएस आपको काम आता है। आपका डीबीएमएस, आपका डाटाबेस अलग अलग एप्लीकेशन को शेयर करता है और अकॉर्डिंग टू योर रूल्स एंड रेगुलेशन वो एप्लीकेशन से आपका डाटा एक्सेप्ट करता है, उसे लॉजिकली स्टोर करता है और उसको ऑर्गेनाइज करके आपके एक ही सिस्टम पे सेव करके रख देता है। तो डाटा शेयरिंग बहुत आसान हो जाती है। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट एडवांटेज, दैट इज मिनिमल डाटा रिडंडेंसी। अब रिडंडेंसी क्या होता है? जब भी हम कोई फाइल बनाते हैं, कई बार क्या होता है, हमसे गलतियां हो जाती है कि हम डाटा को डुप्लीकेट कर देते हैं, एक ही नाम की एंट्री कई बार कर देते हैं। लेकिन डीबीएमएस आपको इसमें भी हेल्प करता है। वो आपकी रिडंडेंसी को, मींस द डुप्लीकेशन ऑफ अननेसेसरी डाटा इज रिड्यूस्ड। आपको वो डाटा एक कंसिस्टेंट फॉर्म में प्रोवाइड करता है। मींस द फिफ्थ एडवांटेज, दैट इज डाटा कंसिस्टेंसी। अब डाटा कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपने 3 टेबलें बनाई और तीनों टेबल में एक अंकित नाम से एक व्यक्ति है। अब उस व्यक्ति का नाम आपने एक टेबल में चेंज किया, अंकित से अंकिता, तो सारी टेबल जितनी भी उस डाटाबेस के अंदर होगी उन सब में वो चेंजेस आ जाएगा। मतलब आपका डाटा हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा, डुप्लीकेशन होने की चांसेस कम हो जाएंगे। तो इससे आपका काम और ज्यादा आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ भी एडवांटेजेस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज कर देता है। मतलब अगर आपका डाटा प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड हो तो उसको सेव, रीड और सर्च करना बहुत आसान हो जाता है। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द एक्यूरेसी। अब डाटा की डुप्लीकेशन कम हो जाए और डाटा का बार बार रिपीट होना कम हो जाए तो वो कंसिस्टेंट भी रहेगा और डाटा बिल्कुल आपके साथ मिनिमाइज्ड एरर के साथ आपको रिट्रीव हो जाएगा। मतलब कि आपने कहीं एक जगह बदलाव किया, वो बदलाव बाकी टेबलों में भी हो जाएगा। मतलब आपको यह ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि आपको कहां कहां जाके उस डाटा को करेक्ट करना है। एक्यूरेसी इज इंक्रीज्ड। उसके बाद आता है इंक्रीज वैलिडिटी। सबसे महत्वपूर्ण डाटाबेस का ये पॉइंट होता है वैलिडिटी। अब वैलिडिटी क्या होता है? वी कैन सेट प्रॉपर्टीज टू डिफरेंट फील्ड्स। अब प्रॉपर्टीज क्या होता है? मान लो कि मैंने एक कॉलम बनाया एज का। अब कई बार क्या होता है, कई बार हम माइनस साइन दब के -23 एज लिख दी, वो भी डाटा आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। आपने 0 लिख दिया, वो भी डाटा एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे चाहिए कि मेरा जो प्रॉपर्टी फील्ड की हो कि एज जिसकी भी डाली जाए वो 0 से ऊपर होनी चाहिए या 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो मैं उस फील्ड पे प्रॉपर्टी सेट कर सकता हूं। वी कैन प्लान आउट व्हाट ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस वी कैन गिव ऑन द फील्ड। तो इससे वैलिडिटी भी इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं सिक्योरिटी की। अब सिक्योरिटी इज अ मेजर कंसर्न इन योर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे आप जानते हैं कि आजकल डाटा का महत्व बहुत ज्यादा हो चुका है। किसी के हाथ में अगर आपका डाटा लग जाता है तो उसका मिसयूज बहुत आसानी से कर सकता है। लेकिन यहां पर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको पासवर्ड सिक्योरिटी और एनक्रिप्शन सिक्योरिटी दोनों प्रोवाइड करता है। आप सामने वाले यूजर को अपना पासवर्ड दे सकते हैं, जब वो एक्सेस करना चाहे वो अपना पासवर्ड डाल के उस डाटाबेस को एक्सेस कर सकता है। यू कैन ऑल्सो सेट रूल्स एंड रेगुलेशन टू योर डाटाबेस की वो व्यक्ति टेबल के कुछ ही हिस्सों को देख पाए, बाकी सारे हिस्से उससे हिडन हो जाए। तो सिक्योरिटी लेवल भी बढ़ाने का काम किसका होता है? आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। अब एडवांटेजेस की तो बात हो गई, लेकिन सबसे जरूरी बात कि डाटा को ऑर्गेनाइज या फिर स्ट्रक्चर किस मॉडल के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज इंट्रोडक्शन टू डाटा मॉडल्स। अब डाटा मॉडल्स होते क्या है?
डाटा मॉडल वो स्ट्रक्चर होते हैं डाटाबेस के जो कि डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से आपका डाटाबेस के अंदर आपका डाटा स्टोर होगा ताकि वो इंफॉर्मेशन बन सके. Now, it also describes the manner in which your data will be stored and retrieved in your database management system. अब बात करें डाटा मॉडल्स की, तो डाटा मॉडल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स: hierarchical data model, network data model, and relational data model. Talking about the first data model, that is hierarchical data model. In this model, the data is organized into a tree-like structure. अब tree-like structure मतलब एक ही स्टेम से अलग 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 ब्रांचेस निकलती है. जैसे आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो कि अगर कॉलेज को लैब्स की इंफॉर्मेशन चाहिए तो कॉलेज इज कनेक्टेड टू डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट इज कनेक्टेड टू कोर्स एंड कोर्स इज कनेक्टेड टू लैब्स. तो आपका डाटा एक हायरार्चिकल फॉर्म में है. मींस यू हैव टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वाया डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटाबेस. मतलब अगर कॉलेज के डाटाबेस को टीचर्स का डाटाबेस एक्सेस करना है तो उसे पहले डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा, डिपार्टमेंट जाएगा टीचर्स के पास और वहां से वो डाटा एक्सेस होगा. लेकिन दिक्कत कहां हुई? दैट वाज अ वेरी लेंथी प्रोसेस. और तो और कि ये एक ही सिंगल कंप्यूटर के अंदर चलता था. लेकिन अब क्या किया? नेक्स्ट उन्होंने डाटा मॉडल दिया आपका नेटवर्क डाटा मॉडल. नेटवर्क डेटा मॉडल के अंदर आप जब भी डीबीएमएस की बात करेंगे तो डीबीएमएस उसके अंदर क्या करता है? अलग अलग जगह पे सिचुएटेड कंप्यूटर्स को एक साथ रिलेशनशिप में क्रिएट कर देता है. अब रिलेशनशिप तो क्रिएट कर दी, मींस उन दोनों के बीच में एक लिंक बना दिया. दैट लिंक अलाउज many persons located at different positions to access the records which are on different locations. मतलब many to many relationships records के बीच में बनाने का काम किसका होता है? नेटवर्क डाटा मॉडल का. लेकिन नेटवर्क डाटा मॉडल का एक बहुत ज्यादा ड्रॉबैक है जो कि ओवरकम किया जाएगा नेक्स्ट डाटा मॉडल में. लेकिन ये हायरार्चिकल डाटा मॉडल से बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है. यहां पर एक नेटवर्क में वो ग्राफ बना लेता है कि ये रिकॉर्ड इस रिकॉर्ड से लिंक्ड है. लेकिन दिक्कत कहां हुई कि जब रिकॉर्ड से रिकॉर्ड लिंक किया जाएगा तो एक रिकॉर्ड में अगर चेंज होता है तो अगले रिकॉर्ड में ही चेंज होगा, पूरे डाटाबेस में चेंज नहीं होता था. उसके लिए ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट डाटा मॉडल आपका बना रिलेशनल डाटा मॉडल. अब रिलेशनल डाटा मॉडल क्या करता है? रिलेशनल डाटा मॉडल जो आज के जमाने में चल रहा है जिसको बोला जाता है RDBM, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट. इस मॉडल में आप दो टेबल्स को किसी सिंगल फील्ड के थ्रू लिंक कर देते हैं या फिर रिलेशनशिप क्रिएट कर देते हैं. पिछले वाले मॉडल में आपने रिकॉर्ड से रिकॉर्ड को लिंक किया था, लेकिन यहां पर पूरे डाटाबेस में जो स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी टेबल होती है वो टेबल एक दूसरे टेबल से लिंक होती है विद द हेल्प ऑफ योर different columns. So this database model is based on the principle of setting up relationship between two or more tables of the same database. एक ही database में अगर दो या दो से अधिक टेबल है उनके बीच में वो रिलेशनशिप क्रिएट करता था. As you can see in this image कि हर एक टेबल एक दूसरे टेबल से एक कॉलम पर्टिकुलर कॉलम के थ्रू लिंक्ड है. सो ये तीन मॉडल्स थे आपके डाटा मॉडल्स विच वी आर गोइंग टू यूज इन योर डीबीएमएस. लेकिन आपके लिए सिंपल किया जाए तो आज की तारीख में हम सबसे ज्यादा यूज करने वाला मॉडल होता है रिलेशनल डाटा मॉडल. अब रिलेशनल डाटा मॉडल के अंदर क्या क्या टर्म्स होते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट रिलेशनल डाटाबेस टर्मिनोलॉजीज. टर्मिनोलॉजीज से मतलब होता है जो टर्म्स आप बार बार यूज करने वाले हो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी. सो पहला टर्म होता है आपका एंटिटी. एंटिटी होती क्या है? एक ऐसा रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जिसके बारे में आप डाटा कलेक्ट करके स्टोर करते हो किसके अंदर? डाटाबेस के अंदर. मींस इट इज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज टू बी स्टोर्ड इन अ डाटाबेस. ईच एंटिटी के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं. अब एट्रीब्यूट्स क्या होती है? विशेषताएं. मींस मान लो कि अगर आप किसी एक पर्सन की विशेषता बताते हैं, मान लो अंकित एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो अंकित इज अ मेल. ओके, he studies in this class, he is good at sports, he secures good marks. All these are its attributes.
The second terminology comes, that is table. Table is nothing but a collection of related data stored in a structural format. मतलब सारा डाटा हम कलेक्ट करते हैं और उसको अलग अलग कॉलम्स के अंदर स्टोर करते हैं. मींस हर एक टेबल जब भी बनती है तो वो दो चीजों से मिलकर बनती है, दैट इज रोज एंड कॉलम्स. अब इसके ऊपर थोड़ी और चर्चा होती है. द नेक्स्ट टर्म आपको समझ में आ गया होगा कि नेक्स्ट टर्म है आपका कॉलम्स या फिर फील्ड्स या फिर एट्रीब्यूट्स. अब फील्ड सबसे छोटी एंटिटी होती है आपके डाटाबेस में. इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डाटा. मतलब जब भी हम फील्ड में कोई भी इंफॉर्मेशन डालते हैं तो वो सिमिलर टाइप की इंफॉर्मेशन को ही कलेक्ट करने का काम करता है. अब आप सोच रहे होंगे सिमिलर टाइप की कैसे सर? तो सिमिलर टाइप की अगर बात की जाए तो अगर मेरा एज का कॉलम है तो उस सब में एज ही आएगा. अगर मेरा मोबाइल नंबर का कॉलम है तो सारे एंटिटी या सारे सेल्स के अंदर सिर्फ मोबाइल नंबर आएगा. अगर मैंने एडमिशन नंबर का कॉलम बनाया तो उसमें सारी वैल्यूज एडमिशन नंबर की ही आएगी. ना उसमें फोन नंबर की वैल्यूज आएगी ना एज की वैल्यूज आएगी. तो मतलब जब हम फील्ड के बारे में बात करते हैं तो एक कलेक्शन होता है अलग अलग टाइप के डाटा का, लेकिन ऑफ द सेम टाइप. किसी की एज 30 हो सकती है, किसी की एज 29 हो सकती है, किसी की एज 12 हो सकती है, किसी की एज 16 हो सकती है. डाटा अलग अलग है लेकिन सबके टाइप एक ही है. बहुत सारी अनेकों फील्ड मिलके आपको एक रिकॉर्ड बना के देती है. जैसे कि अभी मैंने बताया मोबाइल नंबर की एक फील्ड है, एज की एक फील्ड है, एडमिशन नंबर की एक फील्ड है. तो अगर मैंने एक एडमिशन नंबर उठाया तो उसमें हॉरिजॉन्टली जब हम चलेंगे टेबल के अंदर तो वो पूरा रिकॉर्ड बता देगा कि इस एडमिशन नंबर का मोबाइल नंबर ये है, उसका एज ये दे रखी है. सो अ कलेक्शन ऑफ फील्ड makes a record and every field contains the same type of data in it. तो आगे बढ़ते हैं. The next terminology is your row, record और tuple. अब रिकॉर्ड क्या करता है? रिकॉर्ड होल्ड्स द डाटा वैल्यूज ऑफ ऑल द फील्ड्स फॉर अ सिंगल पर्सन और ऑब्जेक्ट. जैसे अभी मैंने आपको समझाया था कि एक एडमिशन नंबर का मोबाइल नंबर भी है, एज भी है. तो रिकॉर्ड क्या होता है? मल्टीपल फील्ड्स का कलेक्शन जो कि एक सिंगल वैल्यू प्रोड्यूस करता है. किसके लिए? किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पर्सन दैट इज मेंशन्ड इन दैट टेबल. दैट रो कैन बी कॉल्ड एज अ रिकॉर्ड और अ टपल. अब थोड़ा आसान कर दिया जाए कि एक रिकॉर्ड किसी भी एक ऑब्जेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन रहती है और फील्ड क्या रहती है? किसी भी एक व्यक्ति की एक टाइप के डाटा की इंफॉर्मेशन. Now you might be clear with the terminologies of your relational database management system. आगे बढ़ते हैं. कीज के बारे में हम अब डिस्क्राइब करेंगे. अब कीज होती क्या है? कीज इन अ रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर नथिंग बट कॉलम्स, सम स्पेशल कॉलम्स which help you to create links between the tables. जैसे हमने रिलेशनल डाटाबेस मॉडल में पढ़ा था कि एक टेबल को दूसरे टेबल से वो क्या करता है? रिलेशनशिप क्रिएट करता है. वैसे ये रिलेशनशिप क्रिएट करने में अलग अलग कॉलम्स अलग अलग काम करते हैं. इन कॉलम्स को स्पेशली कोई नाम दिया जाता है और उनका महत्व भी अलग अलग होता है. तो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट प्राइमरी की. प्राइमरी की इज अ सेट ऑफ कॉलम्स और वी कैन सी अ सिंगल कॉलम इन अ डाटाबेस टेबल which uniquely identifies a row. मतलब कि जो भी रिकॉर्ड होगा आपके टेबल में उसको यूनिकली या छाट के निकालने में आपकी मदद कौन करता है? प्राइमरी की. मान लीजिए एक टेबल के अंदर एडमिशन नंबर है, नेम है, मोबाइल नंबर है, ठीक है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसका एड्रेस है, उसका मदर्स नेम है, फादर्स नेम है. सो डायरेक्टली हम प्राइमरी की बना देते हैं एडमिशन नंबर को. जैसे हम एडमिशन नंबर डालेंगे उस व्यक्ति का, उसकी सारी इंफॉर्मेशन या वो पूरा रिकॉर्ड हमारे सामने आ जाएगा. प्राइमरी की किसी कॉलम को बनाने के लिए दो रूल्स की बहुत आवश्यकता होती है. द फर्स्ट रूल इज दैट देयर कैन नॉट बी एनी डुप्लीकेट डाटा. मतलब डाटा रिडंडेंसी नहीं हो सकती है. सेकेंड थिंग, नो वैल्यू कैन बी सेट टू नल. मतलब कोई भी वैल्यू आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं. तो ये तो हो गया आपका प्राइमरी की का कॉलम. प्राइमरी की एक टेबल में सिर्फ एक ही हो सकती है. लेकिन अब हम रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं तो अब दूसरे टेबल को कैसे पता चलेगा कि ये वाला इस टेबल के अंदर प्राइमरी की बना हुआ है? उसके लिए द नेक्स्ट की कम्स फॉरेन की. फॉरेन की इज अ फील्ड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स जो कि एक टेबल को रिफर करता है कि दूसरे टेबल में प्राइमरी की कौन सी है. टॉकिंग अबाउट दिस, अ फॉरेन की इज अ फील्ड इन वन टेबल
that refers to the primary key in another table. This key helps to establish relationship between two tables. दो टेबल के बीच में relationship foreign key से ही create होती है. It also maintains the data integrity by linking the records. अब data integrity जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अंकित नाम का जो व्यक्ति है, अगर उसका नाम अंकिता बन जाता है या हम उसको चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, तो बाकी सब टेबल्स के अंदर भी वो मॉडिफिकेशन किसके थ्रू होता है? आपकी फॉरेन की के थ्रू. नेक्स्ट की आती है आपकी कैंडिडेट की. अब कैंडिडेट की क्या होती है? जैसे उम्मीदवार, आप इलेक्शन में देखते हैं अलग अलग कैंडिडेट अलग अलग पार्टी से खड़ी होते हैं, लेकिन हम एक सुटेबल कैंडिडेट को ही चुनकर वो पद प्रोवाइड करते हैं. उसी तरीके से बहुत सारी कैंडिडेट कीज जो कि उम्मीदवार होती प्राइमरी की बनने के, उसमें से कोई भी एक की प्राइमरी की बन जाती है. जैसे एडमिशन नंबर और मोबाइल नंबर, एक ही टेबल में दोनों फील्ड्स हैं या दोनों कीज हैं, लेकिन हमने अगर एडमिशन नंबर को बना दिया प्राइमरी की, तो जो उम्मीदवार नेक्स्ट है जो कि प्राइमरी की बन सकता था लेकिन वो नहीं बन पाया, उसे बोला जाता है आपका अल्टरनेट की. अब अल्टरनेट की क्या होता है? ऐसा कैंडिडेट की जो कि प्राइमरी की नहीं बन पाया, हु वाज नॉट चूजन टू बिकम अ प्राइमरी की. मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट की कम्स सुपर की. सुपर की और प्राइमरी की बिल्कुल सिमिलर होते हैं, लेकिन बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है. प्राइमरी की में रूल सेट होता है कि कोई भी वैल्यू नल सेट नहीं हो सकती. सुपर की के अंदर वो रूल खारिज कर दिया जाता है या वो रूल हटा दिया जाता है. इन सुपर की इस कॉलम के अंदर आप अपने वैल्यू को नल छोड़ सकते हैं. कई बार क्या होता है कि प्राइमरी की सिर्फ एक ही कॉलम से मिलकर नहीं बन सकती. दे नीड अ सेट ऑफ कॉलम. व्हेन सच थिंग हैपेंस इट इज नोन एज अ कंपोजिट की. अ कंपोजिट की इज अ कैंडिडेट की दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट्स. अब एट्रीब्यूट्स बोलो, फील्ड्स बोलो, चाहे कॉलम्स हो बोलो, that together uniquely identifies an record or an entity or an object. So in the following image, you can see what are the different types of key substituted in it. It can give you a clear picture of what's going to happen and how a key is set. Next comes database objects. अब objects in database होते क्या है? Objects जो होते हैं वो आपको structure या कंपोनेंट्स बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो कि इस तरीके की चीजें जो आपके डाटा को स्टोर और मैनेज करने का काम करते हैं. इन डीबीएमएस ऑब्जेक्ट्स आर द स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स यूज्ड टू स्टोर एंड मैनेज डाटा. दे हेल्प टू ऑर्गेनाइज, रिट्रीव एंड मैनिपुलेट डाटा एफिशिएंटली. सो टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट्स एंड देयर डिस्क्रिप्शंस. तो पहला ऑब्जेक्ट जो आता है दैट इज योर टेबल. Table is a very important object in your database. What it does, it stores the data in an organized manner in rows and columns. Next object आपका आता है that is known as forms. जब यूजर फ्रेंडली वे में हम डाटा को स्टोर करना चाहते हैं या हमारा टेबल का डाटा हम दूसरों को नहीं बताना चाहते हैं, then we can create a form. It's a user friendly manner in which a form is made. When the information is entered into the form by a person or an object or an entity, then it gets directly stored in your table. So the data entered through the form is stored in your table, not in the form. The third object comes, that is queries. Now what is query? Query is simply known as filtered form of your data. मतलब आपके डाटा को जब आप पर्टिकुलर वे में या पर्टिकुलर रूल्स में या अपने अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसे बोलते हैं क्वेरीज. तो ये ऑब्जेक्ट आपको क्या करता है? इट हेल्प्स टू रिट्रीव, अपडेट एंड मैनिपुलेट योर डाटा स्टोर्ड इन योर डाटाबेस. चौथे ऑब्जेक्ट का नाम हम बोल सकते हैं दैट इज रिपोर्ट्स. अब रिपोर्ट्स क्या होती है? रिपोर्ट्स आर नथिंग but an organized representation of the data retrieved from your database. आपने जो भी डाटाबेस से डाटा निकालना है उसको एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? रिपोर्ट्स का. हम ये भी बोल सकते हैं कि रिपोर्ट्स हमको एक हार्ड कॉपी देते हैं अपने डाटाबेस का या अपने क्वेरीज का जो हमने रिट्रीव किया उसके अंदर से. So these are the four major objects in your database. Now this was the theory part. So thanks for watching, and in the next video we'll be continuing with
the different forms or objects or structures which are in your database, how to use them, how to create tables, how to create relationships, how to extract data, how to form reports. So thank you for watching. Please like and subscribe. Thank you.